یم تہ برونٹ کن پن پروگرام پیش کرن. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل سلام پھنان تم برونش پیان دعا پرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. جزاک اللہ. ون چھس بہ دیوان دعوت محمد عاصم یم تہ برونٹ کن پن پروگرام پیش کرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پاک وسلام. جزاک اللہ. ون چھس بہ دعوت دیوان شبوک تو فیاض یم تہ برونٹ کن پن پروگرام پیش کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. ایک شبہ کا اضلاع. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے بال کاٹے تھے اس لیے ایسا کرنا درست ہے. تو اس کا صاف اور واضح جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرہ نے اپنے سر کے بال کو زینت اور خوبصورتی کے لیے نہیں کاٹا تھا بلکہ وفائی زینت کے لیے ایسا کیا تھا کیونکہ شوہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں زینت و آرائش کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی سے شادی بھی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ امت المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں ہیں اور ماں ہی کی طرح ان سے نکاح حرام ہے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور تمہارے لیے یہ زیبا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچا سکو اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی عورتوں سے کبھی نکاح کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی گناہ ہے چونکہ عورت کی ساری زینت اس کے شوہر کے لیے ہے. لہذا اس حدیث سے بال کاٹنے کی دلیل پکڑنا کسی طرح درست نہیں ہے. پھر اگر کوئی بوڑھی عورت اپنے بال حدی وجہ لمبے ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتی تو وہ حسابی ضرورت انہیں کاٹ سکتی ہے کیونکہ اسے اب زینت کی کوئی ضرورت نہیں رہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قوم کی مشاہدت اختیار کی وہ تو انہی میں سے ہے. اس حدیث سے یہ بات بالکل صاف ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت مغربی عورتوں کی تعلق میں سر کے بال کاٹے تو بھی انہیں میں شمار کی جائے گی. دوسری حدیث میں کفار و مشرکین اور یہودی نصائی کی مشاہدت کو سراسر
सरासत हराम करार दिया गया है। इस तरह हज व उम्र के मौके पर औरतों को अपनी उंगली के पूरे के बराबर काटने का हुक्म दिया गया है, जैसे कि अली बिन अबी तलाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सर के बाल मंडवाने से मना फरमाया है। इमाम अबू दाऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना है कि हज के बाद औरत अपने सर के तमाम बालों को आगे करके साफ उंगली के पूरे की बराबर काटेगी। अलामी नोदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औरतों के सर के बाल मंडवाने की बदआत और इस बिदत और इनके हुक्म में मुसल्ला किया गया है। गौर करने का मुकाम है कि हज जितनी अजीम जीन इबादत जिसमें सर के बाल मंडवाने लाजमी हैं, मगर वह भी इस्लाम की औरतों के लिए बालों की हिफाजत की और काटने से मना फरमाया, बल्कि मामूली किस्म की तकसीर का हुक्म दिया गया। इन्हें हज के पूरे सवाब में शरीक कर लिया तो आम हालात में बगैर किसी गजर के साफ इक्यार की तलकी और जीनत व आराइश के लिए बाल काटने या मंडवाने किसी तरह दुरुस्त हो सकता है। जाहिर है ऐसा करना इस्लामी तालीम की सहीह मुखालफत कहलाई गए। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह वंदिम बह दावत अक्सा कुयूम यम तह ब्रोह कन पन प्रोग्राम पेश करन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मैं अक्सा कुयूम आपके सामने एक छोटे मौजू पर नज़र डालना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना। इस्लाम ने खुद औरत ही के तहफ़्फ़ुज़ और इसके गौहर असमत के हिफाजत के पेश नज़र इसे अपने घर में टिके रहने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर किसी ज़रूरत व मजबूरी के तहत घर से निकलना ही पड़े तो इसकी बहस शराइत और कुछ आदाब हैं जिनका पेश नज़र रखना असबाब ज़रूरी है, और इन्हीं में से एक ये भी है कि वो कस्तूरी वगैरह और उदू यास्मीन वगैरह कोई खुशबू लगाकर घर से ना निकले, क्योंकि अल्लामा ज़हाबी ने किताबुल कबाइर में इसे इन अफ़आल में से शुमार किया है जिन पर औरत लानत की सज़ावार करार पाती है, और इसे भी इस तबरुज व बेपर्दगी और बनाव सिंगार दिखलाती फिरने का एक हिस्सा बताया है जिस पर कि अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में सख्त नाराज़ होता है। घर से निकलते वक्त औरत के खुशबू लगाने की सख्त ममानात है, जिसका पता अक्सर सही अहादीस से चलता है, जिनमें से चंद दर्जे झेल हैं। जो औरत अतर व खुशबू परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकले ताकि लोगों को इसकी महक पहुँचे, तो ऐसी औरत ज़ाइना बदकार है।
जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद जाए इसकी नमाज इस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो गुस्ल करके इसे ज़ाहिर न करे। जो औरत खुशबू इस्तेमाल करके वो नमाज इशा की जमात के लिए हमारे साथ शरीक हाजिर मस्जिद न हो, अंदाज़ा फरमाइए कि जब मस्जिद जाने वाली औरत के लिए ममनूई है तो बाजार या किसी आम मखलूक पार्टी में जाने वाली के लिए यह कैसे जायज़ होगा। और जब इसके लगाने वाली औरत को नमाज के लिए मस्जिद आने से रोक दिया गया है तो किसी दूसरी जगह जाने की इजाज़त कैसे होगी। ख़वातीन को इस पहलू पर भी खास तवज्जो देनी चाहिए और इन अहदीस को खुसूसन पहले हदीस के अल्फाज को दिल व दिमाग पर नक्श कर लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ की इजाज़त दी गई है और वो है मेकअप का वो सामान जिसका सिर्फ रंग नज़र आए, महक ना उठे, क्योंकि हदीस में है मर्दों की खुशबू है जिसकी महक तो फूटे मगर उसका रंग ज़रा ना हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग तो नज़र आए। गाज़ावा पाउडर, लिपस्टिक वगैरह मगर इसकी महक ना फूटे। जज़ाकल्लाह। वन छस बह दावत दिवान अस्मा मुश्ताक यम तह ब्रोट कन पन प्रोग्राम पेश करन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो जाए तो बैठने से पहले 2 रकात तहतियुल मस्जिद पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इल मस्जिद में अज़ान बेहन ब्रो गड 2 रकात तहतियुल मस्जिद पढ़ा। जज़ाकल्लाह। वन छस बह दावत दिवान आयत अशरफ यम तह ब्रोट कन पन प्रोग्राम पेश करन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़बु बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मैं आपके सामने एक इस्लामी टॉपिक पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। मेरा टॉपिक है शोहर का अहल खानदान के साथ बीवी का सलूक। यह एक निहायत हम नाजुक और संगीन मसला बनाई जाता है। बीवी ये समझती है कि मैं तो सिर्फ शोहर के लिए हूँ और शोहर के घर वाले शादी के काबिल में उम्मीद लगा रहते हैं कि बहू के आने से घर में रौनक बढ़ेगी, सारा काम वो खुद देख लेगी, अहल खानदान को आराम मिल जाएगा वगैरह। हालांकि बीवी के ऊपर शोहर के मुनाजिल हुकूक में यह एक हक ये भी है कि बीवी अपने शोहर के माँ बाप, भाई बहन का एहतराम करे और अगर वो लोग बदसलूकी करे तो इसका बर्दाश्त करे। खुसूसन
ससुर की जातियों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आगे से नहीं बल्कि पानी से भिजती है। और आप किसी मालूम में नरम की जाए तो इसके अंदर हुस्न और खूबसूरती पैदा होगी। बीबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी इनायत और खुद सारी वो नज़र अपने जज्बात को काबू में रखे। इस पर से अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होगी, इसे अजर मिलेगा। मर्द की नज़र में इसका एहतराम और कदर की नज़र मंज़लत बढ़ेगी और इसकी तरफ से मज़ीद इज़्ज़त व मोहब्बत हासिल होगी। नज़र बीवी को चाहिए कि इसका हकीकत को हमेशा याद रख के इसका ससुर और इसके सास की इसकी ख़ानदान की बच्चे से परवरिश की है। जब वो बड़ा हो तो इसके तालीम व तरबियत की। इसके लिए इसका शोहर अव्वल काम यह है कि वो पहले अपने माँ बाप के फ़र्ज़ को चलाए और बीबी का ये फ़र्ज़ भी है कि इसका मुक़स्सिर फ़रीज़े की अदागिरी में इसका शोहर की मदद करे, इसका हाथ बटाए और इसका काम की अंजाम दी और इसका शाना चलने की कोशिश करे। बीबी को ये भी समझ लेना चाहिए कि बदले देने वाले अल्लाह ताला है, जो कभी नहीं मरेगा और हर शख्स जैसा सलूक किसी दूसरे के साथ करेगा वैसा ही सलूक इसके साथ भी होगा। इसलिए आज की बीवी और आज की बहू कल की सास होगी। कल अगर वो अपनी ख़ानदान के माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगी तो कल बड़कपन में इसका बेटियाँ इसके साथ अच्छा सलूक करेगी। और ये एक लटक हकीकत है कि नेकी करने वाले का अजर मिलेगा भी। अजर अल्लाह ताला के लिए ज़ाया नहीं करना। जज़ाकल्लाह। वन छस बह दावत दिवान अयमन जान यम तह ब्रोट कन पनुन प्रोग्राम पेश करन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने तिलावत और मौजू पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सद्रक व वदाना अंक विज़रक अल्लज़ी अंक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अब मैं आपके सामने मौजू पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है एक जन्नती औरत का तज़किरा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पास आ रहा है। इनके साथ एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना पीना है। जब वो आ जाते तो इन्हें इनके परवरदिगार की तरफ से और मेरे जनाब से सलाम कहते और इन्हें जन्नत में हीरे व जवाहरात के नए ऐसे मकान की बशारत दीजिए जिसमें शोर शगब और रंज व माल न होगा। इस वाक़ा से मुसलमान ख़वातीन को ये नसीहत मिलती है कि औरत अगर दुनिया में एक मिसाली बीवी का किरदार अदा करे, दुनियादारी, शौहर की खिदमत गुजारी, बच्चों की तालीम व तरबियत, घर में आने वाली औरतों की इज़्ज़त व तकरीम और अहले खाना का बराबर ख्याल करे तो इस दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी जाती है।
جزاک اللہ ون چھس بہ دعوت دیوان رتبہ رشید یم تہ برونٹ کنہ پنن پروگرام پیش کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. میں آپ کے سامنے ایک موضوع پیش کرنا چاہتی ہوں. میرا موضوع ہے تصویریں سجانا، مجھ سے بنانا اور یادگاری قائم کرنا. عورتوں میں تصویر باز اور فوٹو ہم کا بھی کافی شوق ہوتا ہے. فوٹو اگر حسب ضرورت ہو تو شرافت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر یادگاری کے لیے رکھنا مقصور ہو تو یہ شاخ کے وسائل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں میں سخت عذاب میں مثالیں تصویر بنانے والے ہی ہوں گے. ایک دوسرے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوں گے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوں گے. جزاک اللہ ون چھس بہ دعوت دیوان صبا شفیع یم تہ برونٹ کنہ پنن پروگرام پیش کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. میں آپ کے سامنے اور لیکچر پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. میرا موضوع ہے ایک عقل مند ماں کی اپنی بیٹی کو شادی کے وقت نصیحتیں. ذیل کی سطروں میں ام عاقلہ بنت حارث کی جانب سے بوقت رخصت تھی. اپنی بیٹی کے لیے چند نصیحتیں. ملاحظہ فرمائے جو صرف ام عاقلہ کی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان بیٹی کے لیے عظیم تحفہ ہے. شادی کے وقت انہوں نے اپنی بیٹی کو ان الفاظ میں رخصت کیا: اے میری پیاری بیٹی، جان جگر اور نوری نظر، آج تم اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ، بھائی اور جملہ اہل خاندان کے یہاں کو چھوڑ کر ایک ایسے اجنبی آشیانہ اور اجنبی شخص کے یہاں جا رہی ہو جسے تم پہچانتی نہیں ہو. آج تم ایک ایسے ساتھی کے اور دوست سے ملو گی جسے تم مانوس نہیں ہو، جس کی عادتوں سے تم واقف نہیں ہو. تو تم جا کر اس کے لیے لونڈی بن جانا، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا. تم میری طرف سے یہ چند نصیحتیں لے جاؤ، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا کامیاب جوہر بن جائے گا. خلوص اور تھوڑے پر راضی ہو جانا، خوش دلی سے اس کی باتیں سننا اور بجا لانا.
इसकी आँख और नाक पर नज़र रखना, इसकी आरज़ुएं पूरी करना। इसके लिए तुमसे बेहतर कोई खुशबू नहीं हो सकती और न तुमसे ज़्यादा कोई दिलकश मुनज़्ज़र हो सकता है। इसके खाने और सोने के वक्त पर खुसूसी नज़र रखना और इसकी आरज़ुएं पूरी करना, इसलिए कि भूख की शिद्दत और नींद की किल्लत से इंसान गज़बनाक हो जाता है। इसके माल की हिफाजत करना, इसके अहल व अयाल की, इसके गुलाम और लोंडी की निगरानी करना और माल के बारे में हुस्न तकदीर से और बाल बच्चों के बारे में हुस्न तदबीर से काम लेना। बाकी जज़ाकल्लाह। वन छस बह दावत दिवान सुफैया बशीर यम तह ब्रोह कन पनुन प्रोग्राम पेश करन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सद्रक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मैं आपके सामने उर्दू लेक्चर पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद कभी है कि आप गौर से सुनेंगे। मेरा मौजू है बीवी पर शौहर के हुकूक। बीवी पर शौहर के चंद हुकूक का तज़किरा गुज़श्ता सफ़ात में हो चुका है। ज़ैल में हम इसी सिलसिले की चंद अहादीस पेश कर रहे हैं ताकि मुसलमान ख़वातीन खुसूसन नस्ल की नाज़ व नियामत में पिली हुई लड़कियां जो दीनी तालीम से यकसर नावाकिफ़ हैं हमारे इस तहरीर से कुछ इस्तग़फ़ार कर सीखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, अगर मैं किसी को गैरुल्लाह के सजदा का हुक्म देता तो औरत को ये हुक्म देता कि अपने शोहर के सजदे करे। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई औरत अपने रब का हक इस्तिक़ात तक नहीं अदा कर सकती है जब तक कि अपने शोहर के तमाम हुकूक अदा न कर ले। यहाँ तक कि अगर वो ऊँट की पुश्त सवारी पर बैठी हो और उसका शोहर उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो इनकार न करे। यहाँ तक कि उसका शोहर उससे हालत ज़चगी जमा के लिए बुलाए तो भी इनकार न करे। जब अरब की औरतों को ज़चगी का वक्त आता वो ऊँट की पुश्त पर जाकर बैठ जाती जिससे बच्चे जानने में आसानी हो जाती थी। इसलिए उसका एक माने यह भी हुआ कि यहाँ तक कि उसका शोहर उसे हालत ज़चगी के करीब जमा के लिए बुलाया तो भी इनकार न करे। मगर चूँकि सजदा सिर्फ अल्लाह को क्या जानेगा, गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है, इसलिए इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर की कदर व कीमत और बीवी पर इसके हुकूक को बड़ी मजबूती के साथ बयान किया है। साथ ही मगरिफत और कुदरतशनासी का बड़ी खूबी है तज़किरा किया है। एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं औरतों की तरह से आपके पास साथी बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है, अगर वो कामयाब लौटते हैं तो अजर व सवाब पाते हैं और अगर शहादत हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ख्याल ये है कि हम बस इसकी अमानत को निगाहत करती हैं, हमें इस पर क्या अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकातें औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का इतना शौहर
की खिदमत व अताअत करना और इसके हुकूक की रियायत करना। अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में से बहुत कम औरतें ऐसे होंगे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से बयान फरमाया है कि औरत को अपने घर की निगाहत, बच्चों की तरतीब और शोहर की खिदमत करने पर इतना ही अजर मिलेगा जितना कि मुजाहिद को मैदान जहाद में लड़ाई लड़ने या शहीद पाने पर। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला की साजाज़ादी कहती हैं, हम अपने खावंद से इस तरह बात नहीं किया करते थे जिस तरह तुम अपने इमरा से बातचीत कर लिया करते हो। जज़ाकल्लाह। वंचस बह दावत दिवान मुंतहा मंजूर यम तह ब्रोट कन पन प्रोग्राम पेश करन। मर्द औरत पर फाइक है, इसका सरदार है, इसका मालिक और हाकिम है, इसका मुशरिक व मरबी और उस्ताद है। नेज़ इसकी माने की हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से होती है। अगर मैं किसी को गैर अल्लाह के सजदे का हुक्म देता, औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदे करे, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई औरत अपने रब का हक असूल तक नहीं अदा कर सकती जब तक कि अपनी शौहर इससे हालात जा चुकी में जमाओ के लिए बुलाए तो फिर इनकार न करे। बस जो औरतें नेक हैं, ताबियादार हैं, अपने शौहरों की और जिन चीज़ों की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, शौहर की गैर मौजूदगी में जिन चीज़ों इनकी हिफाजत करती है। बाकी वसल्लम। जज़ाकल्लाह। वंचस बह दावत दिवान अफराना अजमल यम तह ब्रोट कन पन प्रोग्राम पेश करन। मेरे प्यारे भाई और बहन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौमा यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल अहनिल मनफूश फ़अम्मा मन
ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ میں آپ کے سامنے ایک موضوع پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرا موضوع ہے شوہر پر بیوی کے حقوق۔ جس طرح شوہر ہر وقت بیوی سے اس کے فرائض و جذبات اور لازمات کی دو تنگی کا کھویا رشتہ ہے، اس طرح اسلامی شریعت نے بیوی کے لیے شوہر پر کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ اس لیے شوہر کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی کو کسی قسم کی تنگی نہ دے، نہ ہی اس کے جذبات کو مجرم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ضرورتوں پر عورتوں کا حق ایسا ہی ہے جیسے کہ دو سنتور کے مطابق عورتوں پر فرمایا گیا حق ہے، لہذا ضرورتوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت حاصل ہے۔ جزاک اللہ ونتم بہ دعوت فضا معین یم تہ برونٹ کنن پنن پروگرام پیش کرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت